السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہم صحابہ کرام کی شان کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ تو صحابہ کرام کی شان میں چوتھے نمبر پہ سیدنا علی ہیں۔ یہ خلفائے راشدین میں جانے خلفائے راشدین کی ہم شان بیان کر رہے تھے۔ تو یہ چوتھے خلیفہ سیدنا علی ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ ان کی شان بھی بیان کی جائے، تاکہ ہمارے جو دل ہیں ان کے اندر صحابہ کرام کے لیے کوئی کینہ اور بغض نہ رہے۔ حضرت ابو طالب کے 4 بیٹے تھے۔ ایک طالب جن کے کنیت پہ ان کا نام ابو طالب بنا، اور دوسرے نمبر پہ عقیل ہیں، تیسرے نمبر پہ حضرت جعفر، اور چوتھے نمبر پہ علی ہیں۔ علی اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے، اور تواریخ کے اندر یہ بات آتی ہے کہ یہ 10 سال ایک دوسرے سے چھوٹے تھے۔ 2 بہنیں تھیں ان کی، ام ہانی اور جمانہ۔ ان کی والدہ کا نام فاطمہ بن اسد تھا۔ اچھا، حضرت علی کی حضرت فاطمہ سمیت 8 بیویاں تھیں۔ حضرت علی کی کل اولاد جو ہے وہ 14 بیٹے اور 19 بیٹیاں ہیں، اور بعض روایات کے مطابق 17 بیٹیاں تھیں۔ اس طرح ان کے 33 بچے تھے۔ یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں حضرت علی نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا، اور اس کے بعد پھر حضرت علی نے یک کے بعد دیگرے نکاح کیے، اور کثیر اولاد اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ سیدنا علی شیر خدا، اسد اللہ، بہادر اور جرار، یہ ان کی شخصیات کے پہلو ہیں۔ امیر المومنین سیدنا علی کی شخصیت اسلامی تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ آپ کی سیرت دین اسلام کے ذریعے سے عقل کو روشن بنانے کا ایک چشمہ ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ سنتوں پر عمل کیسے کیا جائے، قرآن کے مطابق زندگی کیسے بسر کی جائے، قرآن کی اتباع کیسے کریں۔ ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ کی سیرت طیبہ اور روافض و خوارج کی پھیلائی ہوئی غلط فہمیوں اور شکوک و شبہات کا توڑ بھی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضرت علی صحابہ کرام سے بہت ہی زیادہ محبتیں کرنے والے تھے، اور انشاءاللہ ہم آگے دیکھتے ہیں کہ کیسی محبتیں تھیں ان کی۔ حضرت علی مکے کے ان باشندوں میں سے تھے جنہوں نے اپنے نوخواندہ معاشرے میں پڑھنا لکھنا سیکھا تھا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو بچپن ہی سے پڑھنے لکھنے کا شوق تھا، علم سے محبت تھی، علم سے والہانہ لگاؤ تھا۔ اپنے اسلام کے بعد سے قرآن حفظ کرنے، اسے سمجھنے اور اس میں غور و فکر کرنے کا اہتمام کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، جو آیات آپ پر نازل ہوتی ہیں آپ انہیں یاد کر لیتے۔ اس طرح آپ پورے قرآن کے حافظ بن گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور تربیت کی برکت سے آپ خیر کثیر کے مالک بن گئے تھے، خلفائے راشدین میں سے ہوئے۔ حضرت علی کے کس پہلو پہ بات کی جائے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں تمام صحابہ سے زیادہ سنت کا علم سیکھا، اور سب زیادہ سنت کا علم رکھنے والے تھے۔ تو ان ایام میں ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے علی رضی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ ہوا، تو کہنے لگیں کہ اس وقت جتنے صحابہ کرام زندہ ہیں ان سب میں علی کو سنت کا سب سے زیادہ علم ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ علی سے بہت کم احادیث مروی ہیں۔ آپ سے روایت میں آتا ہے کہ 585 احادیث مروی ہیں، جو دوسرے صحابہ کرام کے مقابلے میں کم ہیں۔ یہ اس لیے کہ آپ جنگوں میں مصروف رہتے تھے، وعظ و تبلیغ کی محفلیں لگانے کا ان کو پاس بہت کم ٹائم ملتا تھا۔ ان کو
ग़ज़वा अल-अशीरा में हज़रत अली के साथ अम्मार बिन यासर थे। ये एक दफ़ा किसी मिट्टी में लेट गए जिससे मिट्टी से लथपथ हो गया। तो इनको उठाने वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आपने आकर उठाया। जब इन्होंने आँखें खोली तो देखा कि नबी करीम अलैहिस्सलाम इनके पाँव को हिला रहे थे। तो जब आपने उठाया, उठ के बैठ गए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अबू तुराब। तुराब का मतलब होता है मिट्टी। तो मिट्टी में लथपथ थे तो कहा अबू तुराब, और साथ ही ये भी फरमा दिया कि बशारत दे दी जाने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मैं दो बदबख्त आदमियों का नाम है आपको बताऊं। फरमाया अल्लाह का रसूल आप ज़रूर बताएं हमें। फरमाया एक तो कौम समूद का वो बदबख्त बंदा जिसने ऊँटनी की पूंछें काट डाली थी, ऊँटनी की टांगें काटी थी जिसने, यानी, और दूसरा वो बदबख्त बंदा है जो तुम्हारे यहाँ नबी ये हज़रत अली की खोपड़ी की तरफ इशारा करके फरमाया कि जहाँ तुम्हारे मारेगा, जहाँ तक दाढ़ी खून से तर हो जाएगी। यानी शहादत की खुशखबरी भी इसके अंदर हो गई, और मारने वाला जो है वो बदबख्त भी ठहराया गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई दफ़ा अबू तुराब करके पुकारा। तो हज़रत अली को ये कुनियत बहुत पसंद थी। हज़रत अली अबू तुराब के नाम से ही पुकारा जाना पसंद फरमाते थे। इसके अलावा ग़ज़वा खैबर में भी हज़रत अली को हुब्ब रसूल और हुब्ब इलाही की बिशारत मिली। फरमाया आज झंडा मैं उससे दूंगा जिससे अल्लाह और उसका रसूल मोहब्बत करते हैं, और वो भी अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह उसके हाथ में फ़तह देगा। तो अल्लाह ताला फिर उनके हाथ में फ़तह दी थी। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों से अल्लाह मोहब्बत नहीं करते, यानी बस कोई एक ख़ास मकाम की बात होती है। दूसरों सहाबा कराम से भी अल्लाह ताला मोहब्बतें करते हैं, उनकी भी फजीलतें हैं। ये कुरान पाक में आता है युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, वो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह उनसे मोहब्बत करते हैं। और इसके अलावा शुरकाए बदर के बारे में भी कहा बिलाशुबा अल्लाह इन लोगों से मोहब्बत करता है जो इसकी राह में सफ़ बांध कर लड़ते हैं। इसके अलावा मस्जिद कुबा वालों के बारे में भी अल्लाह ताला ने मोहब्बत का इजहार किया। फ़ीही रिजालुन युहिब्बूना अन यततहहरू वल्लाहु युहिब्बुल मुततहहिरीन, यानी इस मस्जिद में ऐसे आदमी हैं जो खूब पाक होने को महबूब रखते हैं, और अल्लाह ताला भी खूब पाक होने वालों से मोहब्बत रखता है। तो इसके अंदर उन लोगों से भी मोहब्बत ज़ाहिर हो गई, और बाकी तमाम मोमिनीन से भी मोहब्बत ज़ाहिर हो गई जो खूब पाकी का ख्याल रखते हैं। तो मोहब्बतें जो हैं सहाबा कराम के लिए कई जगह अल्लाह ताला ने कुरान पाक में अंदर फरमाया, और सबसे बड़ी वो गारंटी वाली बात जो थी रज़ी अल्लाह अन्हु व रज़ू अन्हु, कि अल्लाह उनसे राज़ी हो गया और वो अल्लाह से राज़ी हो गए। सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बच्चों के नाम सहाबा कराम के नामों पर रखे थे। उन्होंने अली के जब पहला बेटा हुआ, लोगों ने कहा नाम क्या रखा। हज़रत फ़ातिमा के बाद जो दूसरी बीवियां थी, कहा मोहम्मद। दूसरा बेटा हुआ, पूछा नाम क्या रखा, कहा अबू बकर। तीसरा बेटा हुआ, लोगों ने कहा नाम क्या रखा, कहा उमर। चौथा बेटा हुआ, कहा अली। नाम क्या रखा, कहा उस्मान। फरमाते क्या हैं हज़रत अली? फरमाते हैं जो अल्लाह ने तरतीब रखी है अली ने भी वही तरतीब रखी है। और अहद उस्मानी में आप बहसियत में शीर और हदूद नाफिज करने वाले थे, उनके साथ मिल के चलते थे, सहाबा कराम के साथ मिल के चलते रहे।
अमीर उल-मोमिनीन उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मशवरा जो एक की रत पर लोगों को इकट्ठा करने का दिया था, हज़रत अली ने ही दिया था। और फिर इस मशवरे ने बाद में मराहल भी तय किए। अच्छा, अकीदा अहले हक के मुताबिक अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उमर, उस्मान के बाद तमाम सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ज़्यादा सैयदना अली खिलाफत के ज़्यादा हकदार थे। हालांकि खुद अब खिलाफत के हरीस नहीं थे। मदीना के सहाबा कराम के शदीद इसरार पर आपने ये जिम्मेदारी संभाली थी। जिम्मेदारी तो संभाल ली, लेकिन अली का दौर बड़े ही फितने फसादों का दौर था। इस इंतशार को समेटना आपकी खिलाफत की यहाँ मसरूफियात थी। हज़रत अली के दौर खिलाफत में दो बड़े मार्के भी हुए थे, जंग जमल और जंग सुफ़ैन। जंग जमल वो थी जो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के खिलाफ लड़ी गई थी, और हज़रत आयशा ऊँट पे बैठकर बाहर निकली थी, और ऊँट को जमल कहती थी, इसलिए इसका नाम ही जंग जमल पड़ गया। और ये उस्मान के कत्ल के बदले में थी, और इन मार्कों की आग भड़काने वाले फासिक व फाजिर लोग थे। इस दौर में रवाफिद और ख़वारिज बहुत जोर पकड़ चुके थे, यानी वो लोग इन सहाबा कराम को भड़काते थे जिन्होंने हज़रत आयशा का साथ दिया था। वो ख़वारिज ने और रवाफिद ने ही उनको भड़काया था कि उस्मान का कत्ल का बदला लिया जाए। लेकिन हज़रत अली फरमाते थे कि अभी मैं थोड़ी सी अपनी जो है वो जमात को मुस्तहकम कर लूँ, कोई अपनी हुकूमत को मुस्तहकम कर लूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि अभी पहले इसको हल करना है। इस तरीके से कुछ गलतफहमियाँ थी जिसकी वजह से जंग जमल हुई थी। अच्छा, इसके अलावा हज़रत अली जो थे ये बहुत ही ज़्यादा सुन्नतों के ताबेदार थे। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा से सरशार थे। एक दफ़ा आपने फरमाया, दीन तुम्हारी अक्ल का ताबे नहीं है। दीन का दारोमदार अक्ल और राय पर होता तो मौज़े के निचले हिस्से का मसा करना ऊपर के हिस्से से मसा करना इससे ज़्यादा बेहतर होता। यानी हदीस पाक में क्या है कि पाँव के ऊपर से मसा करो, मौज़े के ऊपर से मसा कर लो। हज़रत अली फरमाते हैं अगर अक्ल के ताबे होता दीन तो ये पैर के नीचे से मसा ज़्यादा ठीक होता, लेकिन जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसी तरीके से ही करना है। तो हज़रत अली जब ख़ारिज की जंग से वापस हुए तो अपने साथियों के दरमियान बड़ा बलीग, नफ़ा बख्श और खैर पर मुश्तमिल इसमें आपने तरीक़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत ज़ोर दिया। फरमाया अपने नबी के तरीक़ा को अपनाओ, वही सबसे अफजल तरीक़ा है। आपकी सुन्नतों पर अमल करो, वही सबसे अफजल तरीन सुन्नत है। एक दफ़ा ना अबू तुफ़ैल रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि हमने अली से कहा ऐसी राजदारी की बात बताएं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ़ आप ही को बताई हो। आपने फरमाया मुझे ऐसी कोई बात नहीं बताई जो दूसरों से पोशीदा रखती हो। अलबत्ता आपको मैंने ये फरमाते हुए सुना है कि यह हदीस जो है वो मुस्नद अहमद में भी है और मुस्लिम शरीफ में भी है। नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाई, अल्लाह की लानत है शख्स पर जिसने गैर अल्लाह के नाम पर ज़िबा किया। अल्लाह की लानत है शख्स पर जिसने किसी बिदअती को पनाह दी। अल्लाह की लानत है उस शख्स पर जिसने अपने वालिदैन पर लानत की। और अल्लाह की लानत है उस शख्स पर जिसने ज़मीन के निशानात को बदला। अगर ये चीज़ें मामूली होती तो इन पर ये इतनी बड़ी सख्त वईद ना होती। ज़मीन के निशानात को बदला यानी अगर किसी जगह पर कोई दरख्त था, कोई दीवार थी या कोई पगडंडी थी, जिस तरह की कोई निशानी थी तो जिससे लोग फ़ायदा उठा रहे थे,
लोग रास्ता ढूंढ लेते थे, तो वो ज़मीन की निशानी को ख़त्म कर दिए। जहाँ ज़मीन को नाप के कोई निशान वगैरह जो लगाया जाता है, तो उसकी निशानी जो है वो भी इसके बारे में आएगी। हज़रत अली जो है थे बहुत ही नेक तबा इंसान थे। जब हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शादी की बात चलने लगी, तो सैयदना अली की लौंडी ने कहा कि फ़ातिमा के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रिश्ते आ रहे हैं, तो आप मांग लें। तो अली ने फरमाया कि मेरे पास है भी क्या जो मांगने के लिए जाऊं, यानी कोई माल तो है नहीं मेरे पास हक महर के लिए भी। वो लौंडी ने मशवरा दिया कि आप मांगे मिल जाएगा आपको। इतनी मुखलिस होती थी लौंडियाँ भी वो। हज़रत अली फरमाते हैं कि मैं गया, लेकिन ना उस जलाल वाले चेहरे को देखकर कुछ बोल ही ना सका और खामोश होकर बैठ गया। तो कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह आंखें पाड़ लेता है बंदा, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही फरमाया कि फ़ातिमा के रिश्ते के लिए आए हो। अल्लाह के रसूल जी। फरमाया कि हक महर के लिए कुछ है? कहा कुछ भी नहीं है। कहा आपके पास जो वो ज़ीरा थी वो क्या कहाँ है? कहा वो है। तो एक रवायत में आता है कि आपने फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसी ज़ीरा जो है वो हक महर के बदले में मैंने तुम्हारा के साथ निकाह फातिमा से कर दिया। और दूसरी रवायत में आता है कि वो ज़ीरा बेची थी, उन्होंने बेची थी और बेच के पैसे लेके आए थे। और फिर वो ज़ीरा भी जिसके हाथ बेची थी, और वो भी हज़रत उस्मान गनी का नाम आता है कि वो बेची उनके हाथ में, फिर उन्होंने वो ज़ीरा भी शादी के तोहफे में दे दी उनको। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा की शादी हज़रत अली से कर दी, और ये शादी नबूवत से पहले हो गई थी। शादी नबूवत के बाद हुई, हज़रत फातिमा नबूवत से पहले पैदा हुई थी। जब आपकी उम्र 35 साल थी तो हज़रत फातिमा की विलादत हुई 2 हिजरी में। ग़ज़वा बदर के बाद आपकी शादी हुई थी। और हज़रत अली के हज़रत फातिमा से 3 बच्चे पैदा हुए, हसन और हुसैन, और बेटी उम्मे कुलसूम पैदा हुई। और हज़रत फातिमा जो थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद 6 महीने के बाद हज़रत फातिमा भी फौत हो गई थी। तो हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बहुत ही नेक औरत थी, और बहुत ही गुर्बत भी उन्होंने ज़िंदगी जो है गुर्बत में बसर की। और हज़रत अली फरमाते हैं कि हमने इतनी गुर्बत में बसर की ज़िंदगी कि एक दफ़ा मैं आटा लेके आया कहीं से, हज़रत फातिमा को कहा कि रोटी बनाएं, तो फातिमा जो कमज़ोरी की वजह से गूंजते हुए कितनी दफ़ा ही हाथ जो थे वो बर्तन से टकराए, हाथ बर्तन पे गिर पड़ता था कमज़ोरी की वजह से, फाका कशी की वजह से इतनी कमज़ोरी हो गई थी। यह कंजुल ईमान की हदीस है, ये कंजुल अमाल। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहेज़ में भी उनको एक चादर दी थी, एक मुश्किज़ा दिया था, एक तकिया दिया था, यानी इतना कोई लंबा चौड़ा जहेज़ भी नहीं था, ज़रूरत का सामान था। तो इससे यह भी चीज़ साबित होती है कि अगर मेके वाले ज़रूरत का सामान दे दें तो इसके अंदर कोई हर्ज नहीं है। और ज़रूरत का सामान जितना उनके पास माल था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, उसी हिसाब से उन्होंने दे दिया। आप देख रहे हैं ना गरीबियों का हाल है। तो आज के लोग अगर कुछ ज़्यादा भी दे देते हैं तो वो आज की हमारी ज़रूरतें बढ़ी हुई हैं और माल भी कसरत के साथ है। तो अगर
दे भी दिया जाए जहेज़, लेकिन इसमें रियाकारी ना हो, नमुद्दो नुमाइश ना हो, और इसमें फिर उस जहेज़ को ही एक मेयार ना बना लिया जाए। तो ये किसी हद तक जायज़ है, लेकिन ये एक अलग टॉपिक है, यहाँ इसकी जगह नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फातिमा से निकाह किया, फातिमा का निकाह हज़रत अली से किया, तो फरमाया कि फातिमा सुनो, मैंने तुम्हारा निकाह अब ऐसे शख्स से, अपनी बरादरी के अहले बैत में से ऐसे शख्स से किया है जो मेरे नज़दीक, मेरे अहले बैत में सबसे ज़्यादा मुझे महबूब हैं। तो इसी तरीके से हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपनी ज़िंदगी के दिन गुजारे हज़रत अली के साथ। जिस तरह अल्लाह ताला ने जो भी गरीबी थी, जो भी थी, अल्लाह ताला ने वक्त जिस तरीके से उनका लिखा था। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि हज़रत अली के साथ जो है वो बैत करने से, यानी ये ख़वारिज और रवाफिज़ हैं, तो कहते हैं कि अली और ज़ुबैर इब्न अवाम ने पहले मरहले में ही, यानी हदीस के अंदर तो ये चीज़ है कि ज़ुबैर बिन अवाम ने पहले मरहले में ही बैत कर ली थी, लेकिन कुछ रवायात में ज़रा देर से भी बैत करने की रवायत मिलती हैं। लेकिन ये रवाफिज़ और खारजी कहते हैं कि उन्होंने बैत की नहीं थी, या इस तरीके की बातें घड़ के लोगों के दरमियान इंतशार फैलाते हैं। तो तारीखों से साबित होता है कि ये सब मिल के चलते रहे थे, एक दूसरे के ऊपर इनको कोई एतराज़ नहीं था, और ना ही ये इक़्तिदार के भूखे थे। यानी शराब पर जो दुगनी हद लगाई थी वो हज़रत अली ने ही लगाई थी। 40 कोड़े थे शराब की हद, और जब बहुत ज़्यादा लोग शराब पीने लग गए तो ये शराब नोशी जब आम हो गई, तो फिर हज़रत अली ने के ही मशवरे से 80 कोड़े किए गए थे। और दूसरी चीज़, अगर ये सहाबा कराम से चलने वाले नहीं थे, यानी दूसरे खुलफाए राशिदीन से, तो इनकी जो बेटी थी, हज़रत अली की जो बेटी थी हज़रत फातिमा के बतन से, उम्मे कुलसूम, उनका निकाह हज़रत उमर से क्यों कर दिया? अली को कोई मोहब्बतें थी ना उमर से, तो फिर ही ये काम हुआ ना। और ये निकाह जो है इन पर एतमाद कामल, इनकी अजमत और शराफत और बेहतरीन किरदार, आपस की गहरे और अच्छे और मजबूत बाबरकत रिश्तेदारियों की वजह से किया गया था। और उमर के दिल में भी इनके लिए वो मोहब्बत ही शायद किसी और को ना थी, जिसकी वजह से उमर ने फातिमा अली की लखते जिगर उम्मे कुलसूम उनसे निकाह का पैगाम भेजा, और ये कहते हुए अपनी अकीदत का इजहार किया था कि अल्लाह की कसम, उम्मे कुलसूम की उसने सोहबत का जितना मैं मुंतज़िर हूँ, रूए ज़मीन पर कोई इस तरह मुंतज़िर ना होगा। अली रज़ी अल्लाह तआला फरमाया कि ठीक है, मैंने इनका निकाह यानी आपसे कर दिया। तो जब अली ने रिश्ता मंजूर कर लिया तो उमर खुशियों से झूमते हुए महाजरीन के पास आकर कहा कि मुझे शादी की मुबारकबाद दो, और साथ फरमाया कि मेरी दिल ख्वाहिश थी कि मेरे और रसूल के दरमियान कोई सबब और तल्लक पैदा हो जाए। इस रिश्ता को तमाम मौरखीन, मुअल्लिफीन, अंसाब ने, हत्ता कि शिया हजरात के तमाम मुहद्दिसीन, फ़ुक़हा, मुनाज़रीन और आइमा मासूमीन जिनको ये कहते हैं, उन्होंने भी सच माना है इसके। और इसके अलावा एक जगह पे किसी शिये से किसी ने औरत की इद्दत के बारे में सवाल किया था कि इद्दत औरत कहाँ गुजारे, तो उस शिये ने उसे ये जवाब दिया था कि औरत जहाँ मर्जी इद्दत गुजार ले। और उसने ये जवाब में कहा था कि हज़रत अली की बेटी जो हज़रत उमर के निकाह में थी, जब हज़रत उमर शहीद हो गए तो वो अपनी बेटी को बाजू से पकड़ के ले आए थे और अपने घर में कहा था कि जहाँ इद्दत पूरी करो, यानी ये उसने दलील दी थी। इसका मतलब ये है, और इसके अलावा यानी सभी मानती, इसके अलावा इनकी किताबों में हर चीज़ के अंदर इस चीज़ को ये सब ने माना है
कि उमर के निकाह में अली की बेटी थी। अच्छा, बहरहाल उम्मे कुलसूम जो थी बिनते अली, उनकी उम्र के बतन से यानी उम्र से उनके दो बच्चे भी साबित हैं। उम्मे कुलसूम के एक बेटी जिसका नाम रकैया और एक बेटा जैद, ये दो बच्चे भी हज़रत उमर से थे, उम्मे कुलसूम के, हज़रत अली की बेटी के। और तारीखों में इनकी इस तरह की रवायत मिलती है कि एक मरतबा ना किसी झगड़े का फैसला करवाने के लिए, सुलह करवाने के लिए वो वहाँ पहुँच गए थे, ये जैद, और इत्तेफाक से जैद को इस झगड़े में गहरी चोट आ गई थी जिससे सर फट गया था और फ़ौरन मौका पर ही फौत हो गया। तो हादसे को देखकर माँ जो थी इनकी उम्मे कुलसूम, वो भी इस कदर नजीदा हो गई कि बेहोश हो गई और फिर वो मौके पर ही फौत हो गई थी, और दोनों को एक ही वक्त में दफनाया गया था। अब्दुल्ला बिन उमर ने नमाज जनाजा पढ़ाई थी, हज़रत हसन ने नमाज जनाजा के लिए इनको आगे बढ़ाया था और खुद उनकी कत्ता में नमाज पढ़ी थी। और उमर की वफ़ात जब हुई तो हज़रत अली के क्या अल्फाज हैं। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का बयान है कि जब उमर को शहादत के बाद इनके बिस्तर पर रखा गया तो लोगों ने मैयत मुबारक को घेर लिया और इनके लिए अल्लाह से दुआई मफ़रत करने लगे। मैयत अभी उठाई नहीं गई थी कि मैं भी वहीं मौजूद था, यानी इब्ने अब्बास फरमा रहे हैं कि मैं वहीं मौजूद था। इस हालत में अचानक एक साहब ने मेरा शाना पकड़ लिया। मैंने देखा तो वो अली थे। फिर उन्होंने उमर के लिए दुआए रहमत की और इनकी मैयत मुबारक को मुखातब करके कहने लगे, आपने अपने बाद किसी भी शख्स को नहीं छोड़ा कि जिसे देखकर मुझे ये तमन्ना होती कि इसके अमल जैसा अमल करते हुए मैं अल्लाह से जा मिलूँ। अल्लाह की कसम, मुझे पहले से यकीन था कि अल्लाह ताला आपको और आपके दोनों साथियों के साथ ही रखेगा। मेरा ये यकीन इस वजह से था कि मैंने अक्सर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से ये अल्फाज सुने थे, क्योंकि नबी अक्सर फरमाते रहते थे, मैं और अबू बकर उमर फ़लाँ जगह गए, मैं और अबू बकर उमर फ़लाँ जगह दाखिल हुए, मैं और अबू बकर उमर फ़लाँ जगह से बाहर आए। तो अक्सर मैं ये अल्फाज सुनता रहता था, तो मुझे उम्मीद थी कि आप एक ही जगह पे इकट्ठे हिस्सा आएंगे। तो आज भी देख रहे हैं लोग कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं बाएं ये दोनों साथी सोए हुए हैं। और इसके अलावा एक और रवायत में भी है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिस तरह उमर से कहा कि जिस तरह आप फैसला करते हैं करते रहो, जहाँ तक कि एक जमात बन जाओ। मैं इख्तिलाफ से बहुत डरता हूँ। और आपने यह भी फरमाया कि उमर की बांधी हुई गिरा को मैं नहीं खोल सकता। ये मोहब्बतें नहीं थी तो और क्या था। एक दफ़ा ना जब मार्का जमल से फारग हुए तो सैयदना अली बसरा पहुँचे, बसरा से फिर कूफा गए, और कूफा में ना एक सफ़ेद महल था। तो आपसे कहा गया कि आप इसमें क्या फरमा लें। आपने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि उमर इसमें क़याम करना पसंद नहीं करते थे, तो मैं भी इसमें क़याम करना पसंद नहीं करता। तो वो तो उनके नक्शे कदम पर चलने वाले थे। अच्छा, जद्दगर्द की जो बेटी उमर ने ही हजरत हुसैन बिन अली को दी थी। सैयदना उमर बिन खत्ताब ने फारस को जब फतह किया तो उसकी अमवाले गनीमत में से शाह फारस जद्दगर्द की बेटी को हुसैन बिन अली को दे दिए, और इसी के बर्तन से आपके बेटे ज़ैनुल आबिदीन पैदा हुए। आपके तमाम बेटे आपके साथ शहीद हो गए थे, इनमें तन्हा यही बचे थे, और इन्होंने से ही हुसैन की नस्ल आगे बढ़ी थी और इन्हीं की तरफ निस्बत की जाने लगी। लिहाजा जो लोग खुद को हुसैनी नस्ल करार देते हैं और उमर को बुरा भला कहते हैं, वो होश में आए। उनकी मोहब्बतें अल्लाह ताला ने लिखी हुई हैं।
अच्छा, अली के जिस बेटे का नाम उमर था उसने तकरीबन 85 साल उम्र पाई और सैयदना अली की निसफ मिरास के मालिक हुए, क्योंकि इनके तमाम भाई और सगे भाई सब के सब हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ करबला में शहीद हो गए थे, इसलिए तनहा ये इन सब के वारिस बने। अच्छा, सैयदना हसन ने भी अपने बेटे का नाम उमर रखा। उमर से इतनी अकीदत में इस तरह हुसैन ने भी अपने बेटे का नाम उमर रखा, और इनके बाद इनके बेटे जो ज़ैनुल आबिदीन के नाम से मशहूर हैं, उन्होंने भी अपने बेटों के नाम उमर रखे। हज़रत जाफ़र ने भी अपने बेटे का नाम उमर रखा। और काबिल ज़िक्र बात यह है कि ये वो लोग हैं अहले बैत के इमाम कहे जाते हैं। ये लोग सुन्नत नबवी पर जीते रहे और सुन्नत से अपनी ज़िंदगी मुअत्तर करते रहे, और सिर्फ उमर ही नहीं, हक़ के फ़िदाई इन अहले बैत में अबू बकर और उस्मान के नाम का भी रिवाज रहा, और आज भी अहले हक़ का यही मनहज है। आज भी वो सहाबा कराम के नामों पर नाम रखते हैं, सहाबियात और उम्महातुल मोमिनीन के नामों पर नाम रखते हैं। सामीन, सोचने वाली बात यह है कि जिस तरह ये लोग सहाबा कराम के खिलाफ करने वाले लोगों को खिलाफ करते हैं और कहते हैं कि ये ईमान से फिर गए थे नबी के जाने के बाद, क्या नबी की तरबियत इतनी कमज़ोर थी कि ये नबी के रुख मोड़ते ही ये फिर गए थे? ऐसा कभी नहीं हो सकता। नबी की तरबियत के अंदर ये चीज़ नहीं हो सकती कभी भी। और उनकी मोहब्बतें थी, उनकी मोहब्बतों को इस तरीके से ना ख़राब किया जाए कि लोगों के ज़हनों को मोड़ दिया जाए, बर्बाद कर दिया जाए लोगों के ज़हनों को। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बेहतरीन फ़ैसले करने वाले थे और बड़े ही वो अच्छे तरीके से फ़ैसले सोच समझ के करते थे। एक नौजवान ने आके शिकायत की कि मेरा बाप इन लोगों के साथ गया था और अब ये लोग वापस आ गए हैं, तजारत के लिए गया था यानी इनके साथ, अब ये लोग वापस आ गए हैं, और जब मैंने पूछा है इनसे तो वो कहते हैं कि तुम्हारा बाप फौत हो गया था, रास्ते में उनको दफना दिया है। और मैं इनको काजी शरी के पास लेके गया हूँ तो काजी शरी ने जो है कसम लेके मामला ख़त्म कर दिया है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु बड़े दूरबीन थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने बुलाया उनको और उनसे नौजवान के बाप के बारे में पूछा। अच्छा, हज़रत अली ने बहुत ये देखें कि कितनी गहराई से काम लिया। आपने लोगों को बुलाया और फ़ौरन ही एक एक बंदे के ऊपर दो दो बंदे तैनात कर दिए और अलग-अलग कर दिया, कहा कि ये एक दूसरे से बात ना करने पाएँ। और फिर एक को बुलाया और उनसे पूछा कि उनके बाप का क्या बना, वो किस दिन तुम्हारे साथ निकला था, तुम्हारा क़याम कहाँ कहाँ हुआ, तुम्हारे चलने की कैफियत क्या थी और इसकी मौत की वजह क्या हुई, कैसे इसका सामान लूटा गया, किसने इसे गुस्ल दिया, किसने इसकी तदफीन की, किसने नमाज जनाजा पढ़ाई, वो कहाँ दफन है। इस तरह के और भी कई सवालात किए और वहाँ सवालात जो है उसके दर्ज किए गए। तो सैयदना अली ने बयान सुनने के बाद अल्लाह अकबर कहा, वहाँ जो लोग मौजूद थे उन्होंने भी अल्लाह अकबर कहा, जबकि बाकी जो थे उनको हकीकत हाल का पता ना चल सका। अब उसको अलहदा कर दिया गया और दूसरे को लाया गया और उसे कहा गया कि हाँ तुम्हारे साथी जो हैं उसने बता दिया है, आप भी सही सही बता दें। और उसके भी जो बयान थे वो भी कलम बंद किए। तीसरे को बुलाया, चौथे को बुलाया, इस तरीके से उनके अलग-अलग बयान जब लिए तो फिर उनसे कहा गया कि हाँ भाई सब ने सही सही बता दिया है और आप भी सही सही बता दें। और फिर सब ही समझ रहे थे आपस में कि दूसरे ने सही सही बता दिया है। फिर आपने सबको बुलाया और सब ने हकीकत वाक़या का इतराफ़ किया। फिर जो शख्स कैद खाने में था इसे बुलवाया, इससे कहा गया कि तुम्हारे साथी हकीकत वाक़या का इतराफ़ कर चुके हैं
اور اب سچائی کے علاوہ کوئی چیز ہمیں سزا سے نہیں بچا سکتی۔ چنانچہ سبھی نے اقرار کر لیا، یعنی ان کو علیحدہ کیا گیا تھا نا، سب نے اقرار کر لیا۔ پھر آپ نے سب پر مالی تاوان عائد کیا، جو اس کا مال چرایا گیا تھا، اور قتل کے بدلے ان سب کو قصاص میں بھی قتل کر دیا۔ اتنے بہترین طریقے سے فیصلہ کرنے والے تھے۔ آپ کی مدت خلافت بتائی جاتی ہے کہ 4 سال 9 مہینے 6 دن، اور کچھ روایتوں میں دنوں کا اختلاف ہے، سالوں کا نہیں، دنوں کا اختلاف ہے۔ حضرت حسن حسین، حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے غسل دیا، حضرت حسن نے نماز جنازہ پڑھائی۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ کوفہ میں ان کو دفن کیا گیا، اور دوسری ہے مدینہ میں دفن کیا گیا۔ اچھا، علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کہاں دفن ہوئے ہیں، یعنی آج کل جو بتایا جا رہا ہے کہ نا وہاں دفن ہے، کوئی کہتا ہے وہاں دفن ہے، تو اس کے بارے میں کوئی صحیح معلومات اور صحیح روایات، صحیح تواریخ سے پتہ نہیں ہے کہ صحیح بات کیا ہے۔ شہادت علی کی خبر جب معاویہ کو پہنچی تو وہ رونے لگے، تو اس کی بیوی نے کہا کہ آپ نے اسے جنگ کی ہے، اور اب جب اس کے مرنے کی خبر سنی ہے تو آپ نے رونا شروع کر دیا ہے۔ تو کہنے لگا کہ تیرا ستیہ ناس ہو، تجھے نہیں معلوم کہ ان کے فوت ہونے سے لوگوں نے علم اور فقہ کو گنوا دیا ہے، یعنی ان کے خلاف جنگیں کرنے والے جو تھے وہ بھی ان سے محبتیں کرتے تھے۔ تو حضرت علی کی شان میں اور بھی بہت کچھ ہے، تو اتنا ہی کافی ہے۔ کیونکہ پھر درس بہت زیادہ لمبا ہو جاتا ہے اور کچھ لوگ پھر گھبراتے ہیں، تو انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پہ اور جو تشریح رہ گئی ہے وہ انشاءاللہ پوری کر دی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔